one of the most important chapter and topic which is covered under the motion. So that is graphical representation of motion. So this will be a basic phenomenon where we will be trying to get the equation of motions, right? So you probably pretty much aware there are three equations which will be fundamentally required to solve problems associated to physics and numerical. Okay, physics and its numerical, right? So here we will try to make you understand that these two equations will be v is equal to u plus at, then v square minus u square is equal to 2as. Sorry, this will be our last equation, and we will be then deriving s is equal to ut plus half at square, and v minus u square is equal to 2s, right? So these are the three equations, right, which will be called or taken or defined as equation for motions. Equation for motions. But what we will be trying to know here is that how this equation is exactly derived. हमें ये equation मिला कहाँ से? हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे. But before that, right, I'll break this entire functionality, means including this functionality, means existing this functionality from graphical representation of motion. There, why we need exactly? Why graphical method? Why graphical method? Okay. And if we want to solve equations, right? Why we adopting? The reason being is that why do we adopt the configurational analysis through graphical way, right? So just to brief short of what we will be trying to understand here is that first we will be checking what will be the graphical equation and where this derived from, how the graphical representation will look like, and what will be the bottom line of things. So we will be the flow is that basics of graphs, right? The approach of our study for this topic will be basics of graphs. Then we will reach to some basic graphical representation, and then we will derive all these equations, right? So this how we will flow. हमें क्यों ग्राफ की बेसिक समझनी पड़ेगी, फिर हम ग्राफिक के कुछ बेसिक्स रिप्रेजेंटेशन मेथड्स को हम समझेंगे जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, and then we will try to derive this all equations. Okay, so just take a screenshot if you feel to. Why any graph? Why any graphical representation? This is the most important thing. Okay, why any graphical representation? Because this is the more to objective. As first is convenience. First is convenient, and second is convenient of make is a convenience, and second is form of representation. There are two basic aspects on behalf of which
we adopt graphical methods, right? This two graphical method is that convenience. जैसे अगर मेरे को किसी चीज़ को नॉर्मली रिप्रेजेंट करना है, मैं बोलूँ कि 4 लोग आएंगे तो 4 रूट, अगर 4 रुपये में क्या है, इन 4 रुपीज़ आई विल बी गेटिंग 4 टॉफीज़, 6 रुपीज़ 6 टॉफीज़, ठीक है. So instead of telling this a relation, what will I'll try to do? I'll make a graph where I'll make this as a of rupees. Here will be doing rupees, and says it will be rupees here, and here I'll be making in a y-axis will be our toffees count. Okay, so this will be my toffee count, this will be my rupees. So any point of time, if this is 4, this assume 2, this is 4, this is 6, this is 8. So 2 pay, this is again 2, this is 4, this is 6, this is 8. So with 2 rupees, 2, 4 rupees, 4. So if I make this graph, there is a linear variation. So हम assume कर सकते हैं कि ये जो graphical representation है उसका variation कैसा है, बिल्कुल linear है. इसका graphical representation में linearly flow है. Okay, so now here हमें क्या बताया कि इंस्टीड ऑफ टेलिंग दिस इन अ टेबुलर फॉर्मेट हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को ग्राफिकल मेथड्स पे क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड में वो चीजें क्या हो जाती, कन्वीनियंट हो जाती है. क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशंस को बताने में. ठीक है, हर स्टेट हम क्या करते हैं, फिजिक्स में हर चीज की क्या होती है, किसी चीज की एक्सपेरिमेंट सेटअप्स होती है, राइट. और इस एक्सपेरिमेंट सेटअप्स को हम समझने की कोशिश करते हैं. सो दैट एक्सपेरिमेंट सेटअप हैज ऑलवेज अ डेटा, करेक्ट. और उस डेटा को हम किस में क्या करेंगे, किसी एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में बोलेंगे. सो इफ आई कंसिडर दिस सिचुएशन, सो कन्वीनियंस क्या बताता है हमें, ईज ऑफ एनालाइजेशन. हमें ईज एनालाइज करने के लिए क्या हो जाएगा, ईजी करा देगा. अब हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पे मैंने क्या किया, इस डेटा को क्या किया, रिप्रेजेंट किया. ठीक है, अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्मेट में बनाता, अब आप समझने की कोशिश करो, अगर ये डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होता, किस फॉर्मेट में होता, टेबुलर फॉर्मेट, तो आप यहाँ पे क्या करते, यहाँ लिखते टॉफी और यहाँ लिखते क्या, रुपीज. आप अच्छे से समझ लो यहाँ पे, फिर आई मेक अ गुड लेवल ऑफ ग्राफ्स दैट टू नो यू. So there will be, here will be rupee and here will be toffee. So 2 पे 2, 4 पे 4 और 6 पे 6 अज़म कर लो. तो देखो ये चीज़ पे क्या था कि ये इतना पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि आप इस पे एनालिटिक्स नहीं डाल सकते कि 10 का कितना प्राइस होगा, पर आप इसको एक्सटेंड करके ग्राफ अगर 10 पे लेके जाने की कोशिश करोगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा. जो मैं आपको आगे की टाइम्स ग्राफ्स में आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा कि इसका वेरिएशन कैसा है, मतलब लीनियरली वेरिएशंस, राइट. लीनियरली वेरिएशंस क्या होगा, एक सेम प्रोपोर्शन के रेशियो के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा. जैसे इस टाइम के बीच में कितना इंक्रीमेंट है, 2 का, राइट. अगर मैं बोलूँ 6 to 8 में भी जाऊंगा तो 6 to 8 के बीच में इंक्रीमेंट कितना होगा, 2 का. और इस इधर वाई एक्सिस पे भी इंक्रीमेंट कितना हुआ है, इधर भी 2, इधर भी 2. तो वी कैन टेल डैट कि अगर मैं 8 to 10 जाऊंगा 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो 8 से फिर इधर भी इंक्रीमेंट कितना होगा, 2 का ही होगा. इधर 2, तो ये भी इंक्रीमेंट वाई एक्सिस पे कितना होगा, 2 का होगा. तो 8 से कितना हो जाएगा, 10 पे 10 मिलेगा. सो दैट वे वी कैन अज़म विद अ ग्राफ. सो ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशंस पे क्या होता है, दैट मेक थिंग्स आर कन्वीनियंट and it also make a representation, form of representation becomes easy. There is a very short representation of it. और जैसे आप क्रिकेट्स देखो, तो क्रिकेट में कभी कभी देखोगे कि नॉर्मल जब आपके स्कोर कार्ड दिखाता है, तो पहले अगर 10 ओवर की मैचेस चल रही हैं तो उसमें आपको पिक्चोरियल फॉर्म में दिखा देता है. पर वहीं अगर पूरे 50 ओवर या 20 ओवर की 2020 की एनालिसिस होती है तो किस में दिखाता है, वो ग्राफ के फॉर्म में दिखाता है, करेक्ट. तो दैट वे ग्राफ इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे डेटास को हैंडल कर रहे हैं. और जब भी हम इसको हायर स्टैंडर्ड्स पे डेटा हैंडल करने की कोशिश करेंगे, हायर डेटा सेट्स होंगे, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, देयर विल बी बेटर वे टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ग्राफ्स. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड
we'll try to understand different types of graphs. So why graph is clear? Because graph gives us the two basic mechanisms. First is that convenience, and second is it make form of representation of analysis easy, right? So now we will be looking to the another concept, that is more important, is called as distance time graph. What is that is called? Distance time graph. So distance time graph. ठीक है, we'll try to look at distance time graph. So distance time graph will tell the position of an object, position of an object, okay, object with respect to time. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बोलते हैं, इसको कभी कभी क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम किस चीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? वी विल बी रिप्रेजेंटिंग, वी विल या क्या करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो व्हाट वी विल बी रिप्रेजेंटिंग? वी विल बी रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसका? एक पोजीशन किसका? एक ऑब्जेक्ट का. किसके रेफरेंस में? टाइम के रेफरेंस में. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये एम्प्लॉयड हो सकता है, एम्प्लॉयड फॉर वे डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, we'll try to look at distance time graph. So distance time graph will tell the position of an object, position of an object, okay, object with respect to time. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बोलते हैं, इसको कभी कभी क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम किस चीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? वी विल बी रिप्रेजेंटिंग, वी विल या क्या करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो व्हाट वी विल बी रिप्रेजेंटिंग? वी विल बी रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसका? एक पोजीशन किसका? एक ऑब्जेक्ट का. किसके रेफरेंस में? टाइम के रेफरेंस में. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये एम्प्लॉयड हो सकता है, एम्प्लॉयड फॉर वेरियस मोशंस, राइट, और वेरियस टाइप्स. ऐसा करो, वेरियस टाइप्स, फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स. ठीक है, एम्प्लॉयड फॉर वेरियस टाइप्स. तो ये टाइप्स क्या हो सकते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी हम यूज कर सकते हैं. दूसरा, अगर नॉन यूनिफॉर्म में है तब भी यूज कर सकते हैं इसको. थर्ड, वी कैन ऑल्सो यूज इफ द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. तो ये तीनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हमें स्टडी करनी होगी, जब हमें तीनों चीज़ की स्टडी करनी होगी, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? विल बी यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या करेगा? एक रिलेशन बनाएगा. इट विल बी एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशन. किसके बीच में? इसकी रिलेशन किसी के बिटवीन होगा. ठीक है, तो ये किसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा? रिलेशन किसके बीच में करेगा? That relation is between, position and time. हम वही समझने की कोशिश करेंगे. We will try to understand ये कैसे होगा. ठीक है,
दिस इज क्लियर सो फार? सो नाउ अब क्या करेंगे, एक छोटी सी चीज़ है, इसमें हम क्या करते हैं, कन्वेंशंस रखते हैं। हमारा एक कन्वेंशन होगा। कन्वेंशन कैसे होता है? कन्वेंशन का मतलब क्या है, जैसे अगर ये कोई ग्राफ है, राइट, सो वी टेक दिस एज अ एक्स एक्सिस एंड दिस एज अ वाई एक्सिस, राइट, so this will be my positive, this will be positive, negative, and this quadrant will be also negative, right? This is the convention. तो हम कन्वेंशन मानेंगे कि x एक्सिस के अक्रॉस जो है वो क्या है, टाइम है, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका टाइम जो है वो किसके अक्रॉस मेजर किया गया, x एक्सिस के अक्रॉस, और y एक्सिस के अक्रॉस क्या है, उसका डिस्टेंस, ठीक है, कोई डाउट? जो हम समझ लो कि किलोमीटर में है, और एक किसमें है, ये टाइम क्या है, मिनट, जिसको समझ लो, या फिर मीटर में, कोई भी यूनिट में है। पर वाई एक्सिस के क्रॉस क्या है, ये, तो वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा तुमको, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज द टू कन्वेंशंस वी विल बी फॉलोइंग, ओके। आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ समथिंग. So after that, this is the basics of a distance time graph. In distance time graph, we will be representing position of an object or a body with respect to what? With respect to time. Okay, and that will be employed in any type of motion. Could be a uniform motion, it could be non-uniform motion, could be at body as rest. Uniform means non-equal distance at equal interval required. ये क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस, मतलब हम लिखूं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। रेस्ट में क्या करेगा, नो, रेस्ट इज अ वेरी सिंपल स्टेट, उसमें बॉडी क्या रहेगी, हैविंग अ नो मोशंस, राइट। तो इस केस में तीनों चीज की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। नाउ वी विल ड्रॉ सम ऑफ द एनालिटिकल ग्राफ्स, ओके। एज्यूम करूं कि बॉडी किस में है, अज्यूम कि बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म मोशन में है, देयर आर बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हम अज्यूम करेंगे कि बॉडी किस में, यूनिफॉर्म मोशन में है, दैट मेक्स आवर बिट ऑफ जॉब इजी, राइट। सो फॉर दैट वी विल ड्रॉ अ ग्राफ, ओके, विल ड्रॉ अ ग्राफ. In this graph, this will be my y-axis, so this will be my x-axis, and this will become 0, right? So y-axis will be my distance, okay, and this will be my time. Now what happens, यूनिफॉर्म में क्या होगा कि अगर मैं इसको कर रहा हूँ 10, इसको किया हूँ 20, इसको किया हूँ 30, और I extend bit here and I made it as 40, and this will become my x, time in second or time in minute. इसको मान लो आप मिनट में, and is this make this in a kilometer, okay? Now अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, राइट, बॉडी, तो इधर भी सोच लो क्या स्केल है, वही है. This is your 10, this is your 20, this is your 30, and this is your 40, okay. Now a यूनिफॉर्म मोशन है, क्या है कि एक यूनिफॉर्म मोशन में ऐसे बॉडी गई है, ठीक है। यूनिफॉर्म में क्या होता है, 10 पे 10, 20 पे 20, 30 पे 30, 40 पे 40, ऐसा एक ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का. तो दिस इज माई O एंड आई विल टेक अ टाइम इंटरवल. मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेता हूँ. अब क्या है, ये बॉडी कैसे यूनिफॉर्मली मूव किया, मतलब 10 बॉडी का क्या मोशन है, किस हिसाब से मोशन जा रहा है, द बॉडी इज ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर इन 10 मिनट, ठीक है. यहाँ तक के बीच में क्या है 10. अब देखो 10 से 20 के बीच का टाइम इंटरवल, 10 से 20 के बीच का टाइम इंटरवल इज व्हाट, 20 minus 10 kilometers equal to 10 kilometer, and the time duration it will be, again it will be, you know what, 10. तो इस 10 किलोमीटर को ये क्या हुआ तुम्हारा 10 मिनट में फिर कितना ट्रैवल किया गया, 10 किलोमीटर. तो ये चीज़ वेरिएशंस है.
इसलिए क्या यूनिफॉर्म मोशन। अब हम क्या करेंगे, विल टेक अ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन हम अजम करेंगे। तो इसको हमने क्या दे दिया पॉइंट ए, इसको दे दिया हमने पॉइंट बी। दिस इज माई अजम्पशन। सो वी विल टेक अ स्मॉल स्पैन वेयर द बॉडी हैज ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मैंने अजम किया है कि इसमें क्या क्या पॉइंट ए से पॉइंट ए तक बॉडी क्या हुई है, ट्रैवल हुई है। दिस बॉडी इज हियर, मीन्स इफ इट्स गोइंग इन अ ट्रैक हियर, द बॉडी इज एट हियर at 30 second, 30 minute and 30 to 40. It traveled in 40 minute. In 30 minute it was at point A. In 40 minute it was point at B. Right? So now we are measuring some physical quantity between these time interval. So I have taken this 2 time slots. Okay? So I'll erase this one. Okay? So now I'll erase this, right? So this will be, I'll erasing this. So I will what? This will be my A, this will be my B. Okay? Now, you have to make some drawings. So what you have to make? Draw, extend this point on x-axis. So extend points from A and B to x-axis and y-axis respectively. आप क्या करोगे, रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट गिराओ, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस पे इधर आ गया, वाई एक्सिस पे क्या हो गया, इधर चला गया। तो वाई एक्सिस पे आ गया आपका इधर, ठीक है, विदाउट। सो दिस इज द माई पॉइंट where I have projected this line, and this is the point I have projected this line. Again, this will be the point for projection for this point from y-axis, and this will be the another point as reference to A. Yeah. So now, what I'll do, this point I'll tell as S2, and this point which is there on y-axis I'll tell as S1. Y-axis पे लगने वाले point जो B के साथ perpendicular आएगा उसको हम बोलेंगे S2, और जो A के साथ जो परपेंडिकुलर आएगा उसको बोलेंगे हम S। दिस इज माई अजम्पशन। नाउ अब हम इस पर क्या करेंगे, दिस इज माई अजम्पशन। अब हम क्या समझने की कोशिश करेंगे। नाउ व्हाट वी विल ट्राई टू डू हियर इज दैट वी विल नाउ मेक सम रिलेशंस। नाउ assume, right? So this will become, this is S2, so this will become T2 and this will become T1, ठीक है। T2 के एसोसिएटेड जो B पॉइंट पे लगने वाला टाइम था T2, ये वाला जो A के साथ एसोसिएटेड टाइम इंटरवल था T1। फंक्शनली क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हम किस पे निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, और इस पॉइंट का प्रोजेक्शन किस पे निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस पे। इस पॉइंट का प्रोजेक्शन किधर है, वाई पे कितना है, और इसका प्रोजेक्शन हमारा फिर एक्स पे कितना है, हम यही निकालने की कोशिश। फ्रॉम ग्राफ अगर मैं बोलूँ ये जो टाइम है, अगर मैं ग्राफ में अब मैं समझने की कोशिश करूं कि टाइम ड्यूरेशन कितना लगा है इसके बीच में, टाइम ड्यूरेशन कितना है, टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम ए टू बी कितना है, टाइम ड्यूरेशन ए से बी तक जाने में क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, कहां से कहां के बीच में, A टू B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S2। मतलब आप क्या करोगे, इस पूरे वाले में से क्या करोगे, ये पूरा S2 है, अब उस पूरे वाले S2 में से आप S1 निकाल लोगे, राइट। तो क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, ओनली दिस पोर्शन विल बी अवेलेबल, राइट, ओनली दिस पोर्शन विल बी अवेलेबल, मीन्स इफ आई इरेज दिस, सो दिस इज माई S1 एंड दिस इंटायर 2 इज S2। तो अगर इसमें से मैंने S1 हटा दूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा हल्का सा, वही क्या है, यही वाला प्रोजेक्शन किधर गया है, वाई एक्सिस पे गया है। सो नाउ इफ आई टेक दिस एज S2 और इस S2 में से मैंने S1 घटा लिया ये वाले डिस्टेंस को, तो क्या बचेगा मेरा, ये वाला डिस्टेंस जो बचेगा, ये मेरा समझ लो ये पूरा S2 है और ये पूरा मेरा S1 है। तो अगर इस पूरे में से मैंने इतना घटा लिया तो ये वाला जो टाइम, ये वाला जो स्पेस बचेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, कवर डिस्टेंस है। तो दिस विल बिकम व्हाट, S2 माइनस
S1। तो एक रिलेशन निकल के आएगा, क्या निकलेगा? स्पीड का। तो स्पीड का रिलेशन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। आ गया? जो हमारा क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस। तो ये आ गया आपका एक रिलेशन। तो कई बार ग्राफ में ऐसे इक्वेशंस आ जाते हैं, ओलंपियाड्स में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपके पास क्या होगा? एक रैंडम सा ग्राफ दिया हो, ठीक है? जैसे एक्स यूनिफॉर्म दे दिया गया है, यहाँ दिया गया 10 है, यहाँ दिया गया 20 है, यहाँ दिया गया 30 है, और यहाँ दिया गया है वो क्या है? टाइम है, जो क्या है? सेकंड में है, और ये 10, 20, 30, और आपको बताना है कि इसका स्पीड कितना, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि यूनिफॉर्मली है, तो 10 से बीच के बीच में 10, 20 के बीच में 20, ये 10 है, 20 है, ये तीनों किलोमीटर्स में है, ये डिस्टेंस है। तो क्या है? इन दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया? 10 सेकेंड। और ये कितना हो गया तुम्हारा? समझ लो ये मीटर में है, तो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों के ड्यूरेशन में कितना ट्रैवल किया गया है? 10 सेकेंड में कितना किया गया? 10 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 10 मीटर बाई 10 सेकेंड, मतलब क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। तो ग्राफ में कुछ भी डेटा आपको दिया जा सकता है, किधर? एक्स और वाई एक्सिस में, और आपको क्या करके कैलकुलेट करना होगा? आपको इनको फिर इसका स्पीड कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरह के एक बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये था आपका यूनिफॉर्म के साथ। अब हम समझेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है? सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, okay? In non-uniform motion, actually what happens, I'll take just one simple graph and then we can proceed further on that, and because this is very a functional way to understand. आप क्या कर लो? इधर टाइम ले लो, इधर ले लो डिस्टेंस, ठीक है? टाइम हो गया आपका सेकंड में, डिस्टेंस हो गया मीटर में, ठीक है? 0 पे 0 है, 1 पे 2 है, 2 पे 4 है, 4 पे 8 है, 8 पे 16 है, एंड 16 पे 24, ठीक है? सो दिस इज द एक्चुअली नो स्पीड मेजरमेंट थिंग। सो व्हाट वी कैन डू दैट, अब हम इस पे क्या करेंगे? इससे ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो व्हाट you will be try to understand here is that this, if you take this, you have a distance, okay? Take this in a measurement way. So this is this. Two, 4, 6, 8, 10, or take the scale of 4. So this is 4, this is 8, this is 12, and this is 16. Okay. So now again take this as a 0, 2, 4, 6, 8, 10, or take this again as a 4, 8, 12, 16, and this will become 24. 16, 20, or 24. 20, 24. Okay. So this is my graph. So this is my distance, and this is my time. Okay. So this is my distance and this is my time. So if I wanna plot a graph, okay. If I wanna plot a graph, so now what I have to do, I'll take 0 for 0, in 0 it is 0, it is in 2 it is 2, so it will be something where here 4, 1 it is having 2, 2 it's having 2, so somewhere here 4 it is at 8, 8 it is at 16,
24, it is at 16 is at 24. So assume it's somewhere here. So how the graph will be going? The graph will go like this. Okay. So see, we have saw a characteristics where the graph was flowing that from 0 and it is in a straight line, making a certain angle, which is again the concept for 11th. So you can ignore at this point of time, but understand the straight line touching the center, touching the origin of a graph will give you a uniform motion, right? But here हमें देखा कि अनइक्वल डिस्टेंस टाइम इंटरवल पे अनइक्वल डिस्टेंस क्या किए गए, ट्रैवल किए गए, तो ग्राफ क्या हुआ हमको नॉन यूनिफॉर्म हुआ. तो दिस विल बी आवर नॉन यूनिफॉर्म ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ग्राफ्स दिए होंगे कई तरह के, यू हैव प्रोवाइडेड विथ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. Some of the graphs will be, they will ask which will be uniform motion का ग्राफ है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है. देयर विल बी लिस्ट ऑफ ग्राफ्स. ये कई बार क्या हुए हैं, हैशटैग ओलंपियाड्स में क्वेश्चंस आए. देयर आर मेनी क्वेश्चन फ्रॉम ओलंपियाड ऑन द बेसिस ऑफ दिस. ओके, सो टेक दिस. आफ्टर दैट वी विल लुक वेलोसिटी टाइम graph will be our next discussion.